good evening. Welcome to Chat with Khwahish Yawish, sponsored by Noor, the Destiny of Hope. Today's episode is all about creativity and all about the skill and the great personality who is going to interact as will share something about him and the success which he attained in that profession. Now you understand what I'm going to about to say and what our main concept is all about. This week we are going to celebrate the nature, the love of art and creativity. Allah Almighty has given us so much of beautiful nature and so much of things which we don't prioritize. But due to some of the people, art and design, we just look into it and we just say, wow, that's also a part of a nature. It's none other than the photography. Remember, photography is not an easy profession. We have to learn so much about that. The concept, the skill, the technical terms, and so many things. Today, we have a photographer from Pakistan who will not only inspire us but also will let us know how he attained such a successful profession in his career. And this is the best thing all about this show. So let's not take much more time. We'll welcome Daud Malik from Pakistan, who is a photographer, and he will gonna share his story, his inspiring to us only on Chat with Khwahish Yawish, sponsored by Noor, the Destiny of Hope. Thank you so much, Mr. Daud, to accept our invitation for today's episode. It's really been honored to have you over here in Chat with Khwahish Yawish, sponsored by Noor, the Destiny of Hope. How are you doing today? I'm good. How are you? I am great. Much more time, we'll start with segment number one, which is connecting Sure. yourself. It's all about yourself. Okay. Okay? So basically, yeah, sure. Yeah. So the first question I would like to know is please kindly introduce yourself, your profession, your name, you're from where, about your personal and professional life. Okay. Uh, my actual name is Muhammad Daud, but due to when I step into this fashion industry, so we are used to we are habitual of doing like some fashion shoots, which are like termed as like some editorial shoots. So I had a problem with like mentioning my name with the tag of Muhammad. So I skipped the name Muhammad and I added Malik, which is actually my caste. So I am known in this industry as Daud Malik as a fashion photographer. I started this journey like about 4 to 5 years back. I was a wedding photographer at the start, and then finally I decided to be as a fashion photographer and pursue my career as a fashion photographer. Wow, that's good to know. Yeah, I know in some of the industries, due to the names and all that, so many issues happen. Yeah. But we really respect our first name, which is always Muhammad, because it's our beloved Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. And we are honored to be part of Okay. Islam. That's the most important thing. Yeah. How about your personal, with your relation with your mom, family, and everyone? Okay, so basically मेरे फादर नहीं है और my mom is the only guardian और that's the whole family I have. I don't have any siblings, so Oh, me and my mom, that's the whole family. We two of the people are the whole family, and my mom is like a world to me. I'm really sorry to know that because And it's okay. it's good to have a sibling. Otherwise, the life is like incomplete. But what to do? Yeah. What is written in our fate, it is. As being part of your profession, what is the best thing being a photographer? आपको रोज नए लोगों से मिलना पड़ता है. आपका एक स्टिक नहीं होते, एक मखसूस क्राउड सब स्टिक नहीं होते. आपको रोज एक नए लोगों से इंट्रोड्यूस होना पड़ता है. आप रोज आपका हर किस्म की जो कैटेगरी है उसके साथ आपका इंट्रोडक्शन होता है. तो दैट इज आई थिंक दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ बीइंग अ फोटोग्राफर. Okay. तो आपको किसका काम से ज्यादा इन्फ्लुएंस किस फोटोग्राफर का काम से आपको ज्यादा इन्फ्लुएंस हुआ? Okay, if you're talking about Pakistan, तो मुझे स्टार्टिंग में there is a photographer from Lahore, Mohammad Hasnain Mahmood, MHM.
तो मुझे काफी काम इन्फ्लुएंस करता था उनका। फिर उसके बाद देयर इज अनदर फोटोग्राफर अली हसन, फोटोग्राफर फ्रॉम कराची, नादे फिरोज खान। और लेटर ऑन मुझे ब्यूटी शॉट्स का बहुत ज्यादा शौक है। तो उसके बाद जब मैंने सबको आहिस्ता आहिस्ता देखना शुरू किया, तो I ended up with like 2 to 3 photographers. They're not from Pakistan. They are like from abroad, some other countries. One is Tina Essen, one is Lindsay Adler, and there's one more photographer. मैं इनको बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ when I'm like doing my beauty shots especially. और अगर आप कमर्शियल की बात करें तो strictly कमर्शियल में there's a photographer, his name is Carl Taylor. He has been, I guess, द ब्रांड एम्बेसडर फॉर हेजलब्लेड। तो मैं उनको बहुत फॉलो करता हूँ जब मैं कमर्शियल के लिए काम कर रहा था। मैंने अपने जब जब जर्नी स्टार्ट की थी तो मेरे एक फैमिली फ्रेंड है हारिस खोसो, ही इज एन एडवर्टाइजिंग फोटोग्राफर। तो मुझे काफी लाइट्स का आइडिया जो था वो सारा उनके थ्रू मुझे मिला था। वही कहते हैं ना, बिकॉज यू नो वी डोंट लर्न डायरेक्टली फ्रॉम द स्क्रैच, इट टेक्स टाइम, यू नो, व्हेन यू मेक इट, when you in any industry, it's not that half expert home from the people, from your circle, you learn something and the learning never ends. So see, in everyone wants to become doctor, engineer, किसी को teacher. Why you select photography? What made you be a photographer? Okay, there are many of my cousins who are like doctors. There are few of them who are engineers. So I was like, yeah, there has to be a proper profession के जो पूरी फैमिली से अलग हो। मतलब I don't need to be a pilot, I don't need to be a doctor, I don't need to be recognized as a engineer. So I chose this field, और मैं अकेला ही हूँ पूरी फैमिली में कि जो फैशन इंडस्ट्री से बिलोंग करता है। मेरे अलावा जितने भी हैं, कोई फार्मासिस्ट है, कोई साइकोलॉजिस्ट है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई पायलट है, कोई आर्मी में है। तो आई एम द ओनली वन हु बिलोंग्स टू दिस इंडस्ट्री। Good to know. Yeah, so this helps, you know, a unique photographer is that your family, although all are into the medicine and all that, that's really good to know. इसके बारे में anything goal you achieve for your career, something you have thought of? मुझे I wish if I can do a cover shoot for Vogue Italia. मुझे बड़ा एक ड्रीम है मेरी कि मेरा कोई शूट जो है ना वो वोग के पेज पे एज अ कवर आए। तो sure, definitely, you know, luck, kismat, and you know, hard work, it never goes waste. It will pay you back somehow. Not only cover Exactly. page, maybe you can be in the industry the biggest photographer, who knows. ऐसा कोई वाक्य जिससे आपको एहसास हो या you are the right person to be a photographer? अच्छा, मुझे 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 पर्सनली मॉडलिंग का बहुत शौक था। तो Wow. आई वाज बीइंग कॉल्ड बाय 2 एजेंसीज फॉर द ऑडिशन, और मैं तब बल्कि था बहुत ज्यादा। तो उन्होंने कहा जी बॉडी शेप अप कर लें, हाइट ठीक है, पिक्चर्स भी अच्छी आती हैं। लेकिन when I started doing photography in last 5 years, in the past 5 years, तो तब इंडस्ट्री के हालात बहुत डिफरेंट थे। तो मुझे काफी ऐसी चीजें फेस करने को मिली। स्पेशली मुझे काफी ऐसे लोगों ने अप्रोच किया जो एक्सेप्टेबल नहीं था। और मैं एक दिन एक जगह बैठा हुआ था, तो मेरे जो आसपास के दोस्त थे वो सारे कोई वेडिंग फोटोग्राफर है, तो वो कोई ना कोई शूट कर रहे थे। उनके साथ जाता था, शूट्स पे जाता था, देखता था काम कैसे हो रहा है। तो मुझे ऐसे किसी ने रेंडमली कहा, क्योंकि मैं मोबाइल से पिक्चर्स लेता था बेसिकली, तो मुझे किसी ने कहा कि यार तू मोबाइल से पिक्चर लेता है, तू फोटोग्राफर ही बन जा। मतलब तुझे मॉडलिंग का शौक है, ठीक है, सही है, हर बंदे का शौक होता है, लेकिन हर बंदा उस शौक पहले आपको काफी ज्यादा गिव एंड टेक के साथ आपको काम करना पड़ता था। तो वो चीजें क्योंकि मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं थी, तो मैंने उन चीजों से मैं पीछे हट गया और मैं खुद एक फोटोग्राफर बन गया कि यार ठीक है, अगर मैं कैमरे के सामने नहीं आ सकता तो दैट्स ओके, लेकिन मैं कैमरे के पीछे आके मैं एक आम इंसान को एक स्टार बना सकता हूँ। Really, your story is very amazing.
it will really touch people's hearts. Seriously, you have gone through so much hard work, and really, we pray that you get success. Especially when you have your mom, you have everything. Remember, Allah Almighty is always there with you. With that note, you have inspired me so much. So I need to know something personal about you. What is your strength and what is your weakness? आपका कमजोरी क्या है और आपका strength क्या है? कमजोरी क्या है? अच्छा, मैं इधर, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में किसी पे ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल होता है. Yeah. मतलब क्योंकि if we talk strictly about the fashion industry, तो इंडस्ट्री बहुत बाइस्ड है, बहुत डिप्लोमेटिक है इंडस्ट्री. मतलब आपको हर एक के साथ अच्छा रहना पड़ता है. आप हर किसी बहुत, मतलब आपके पास अगर 20 लोग हैं तो आप 20 में से किसी एक पे बहुत सोच समझ के ट्रस्ट कर सकते हैं. मैं ट्रस्ट बहुत जल्दी कर लेता हूँ. मुझे अक्सर औकात जो है ये चीजें फेस करने को मिलती हैं कि ट्रस्ट करिए. फिर मैं बहुत ज्यादा, अगर मतलब किसी के साथ अगर मैं अटैच हूँ ना, मैं उसकी बहुत ज्यादा केयर करूंगा. और अक्सर औकात आपको केयर ना महंगी पड़ जाती है. और मुझे कोई 2-3 दफा ऐसा हुआ कि मैंने लोगों पे बहुत ज्यादा रिलाई किया है, उनको बहुत ज्यादा पुश किया है, और वो एट द एंड जो है ना, मुझे बहुत बैकलैश मिला उस मेरी इस एटीट्यूड का. तो ये मेरे ख्याल से बड़ी मेजर मेरी वीकनेस है, बीइंग अ पार्ट ऑफ अ फैशन इंडस्ट्री. अगर आप उसको स्ट्रेंथ की बात करें तो मैं अपनी इस वीकनेस पे ओवरकम बहुत जल्दी कर लेता हूँ. मतलब अगर लेट्स सपोज अगर किसी ने मुझे किसी की तरफ से बैकलैश मिले, तो मेरी मैक्सिमम ट्राई होती है कि वो जो सिचुएशन है वो मेरे काम पे इफेक्ट ना करे. मैं काम को, मतलब प्रोफेशन और पर्सनल लाइफ को बहुत ज्यादा कोशिश करता हूँ कि वो दोनों को अलग रखूं. वो अलग रखने की वजह से ना वो चीज ज्यादा मेरे पे ना वो मुझे कर नहीं पाती, ओवरकम नहीं कर पाती. मैं उसमें जरा मुझे होता है कि मैं कवर कर लेता हूँ इस चीज को बड़ी अच्छी तरीके से. But when you said about your weakness, that you are too much of protective, too much of caring, remember when आप जब किसी के लिए अच्छे काम करते हो ना, so it's not your weakness, because the same thing I can relate. Yeah, it's fine. People make it the other way, but never mind. Don't lose that proper thing that you have, because these things will carry you throughout your life. That's what I like. My favorite segment, which is segment number 2 after a short break. Don't move anywhere, everyone. We're in conversation with Daud Malik from Pakistan, who is one of the photographer over there. He's really inspiring us. Back after a short break, we're in conversation with Daud Malik from Pakistan, who is a photographer, and we are moving to our segment number 2, which is connecting people. In this segment, we will know how Mr. Daud is connecting to his circle, which is very important in this generation. That is the most aim of our show. So, Mr. Daud, how are you connecting to your people? Is it easily connecting, or आपको time लगता है connect होने में? How it is? It was difficult before when I started doing photography, but अब जाके जो है बहुत आसान है, क्योंकि आपको इस इंडस्ट्री में बहुत ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ता है स्टार्टिंग में, कि अगर आप किसी के साथ कनेक्ट कर रहे हैं या किसी के साथ बात करना चाह रहे हैं शूट के लिए, तो वो आपकी अपनी इतनी वर्थ होनी चाहिए कि अगला बंदा आपको जवाब दे. तो अब जाके अल्लाह का शुक्र है कि मुझे एटलीस्ट इतना होता है कि मैं अगर किसी मॉडल को पिच करते हैं, किसी मॉडल से बात करता हूँ, तो वो उसका रिएक्शन ये नहीं होता कि जी आप कौन या जी बताएं, इस तरह से नहीं होता. वो बहुत ज्यादा वेलकमिंग रिएक्शन होता है. तो स्टार्ट में आपको मुश्किल होती है, डिपेंड करता है आप कितनी जल्दी अपना ट्रस्ट बिल्ड कर लेते हैं, या आपका काम कितनी जल्दी उस लेवल पे पहुंच जाता है कि लोग आपको रिकॉग्नाइज करने लग जाते हैं. It totally depends on your luck, on your hard work. तो ये सिनेरियो है इस सिचुएशन, ये मतलब आपका किसी के साथ कनेक्ट करने का. Okay, when you connecting the people, सबसे important आता है आपके अम्मी अब्बू. So how well are you connected with them? और कुछ उनकी बातें जो अभी भी फॉलो करते हो आपके लाइफ में, जो आपको बहुत इम्पोर्टेंट लगता है? मदर के साथ बेसिकली मेरी अटैचमेंट बहुत ज्यादा है, लेकिन
मैं और मदर जो हैं वो टोटली डिफरेंट है। स्टार्स डिफरेंट है, तो हम लोगों की ना बिल्कुल ऑपोजिट पाथ आप कह लें। तो मेरे अक्सर मदर की मेरे मतलब बहुत ज्यादा होता है कि अक्सर बार मुझे डांट पड़ती रहती है अम्मा से। तो किसी न किसी बात पे मुझे ना मेरी क्लास हो जाती है मदर से। लेकिन स्टार्ट में नहीं, लेकिन अब जाके आपको काफी चीजों के ऊपर ना, मतलब मेरी मदर को बहुत ज्यादा होता था इशू कि आपकी जिंदगी में ना एक ठहराव आना चाहिए। आपको कोई भी काम करना है तो बड़ा सोच समझ के करना पड़ता है। एकदम से आप हापड़ तापड़ में या बड़ी जल्दी में ना ईगो का इशू बना के उस चीज को, या सिर्फ ये सोच के अच्छा ठीक है बस ये अब होना है तो ये करना है, नहीं, उसके अंदर बड़ा ठहराव करके उस चीज को सोच समझ के आपको करना चाहिए। तो अब जाके मुझे लगता है कि काफी हद तक मेरे अंदर वो चीज आ गई है। मतलब मैंने जब स्टार्ट किया था काम तो मैं बहुत ज्यादा अग्रेसिव था, मैं बहुत लाउड था, ब्लंट था बहुत ज्यादा। मैं आई एम स्टिल ब्लंट राइट नाउ, बट अब सीन ये है कि देख देख के ऐसा ऐसा लोगों का रवैया या किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है लोगों को, तो वो आपको सोशल वैल्यूज जो है ना वो आपको ऐसा ऐसा आपके ग्रुप में बैठ बैठ के लोगों से इंटरेक्ट कर करके आपको ऐसा आ जाती है। तो अब अगर मैंने कोई चीज करनी है तो मैं काफी चीजों पे जो है ना खामोश हो जाता हूँ, इग्नोर कर देता हूँ, लेट इट गो कर देता हूँ कि यार ठीक है कोई मसला नहीं, हो गया, अब करना क्या है। मतलब लेट्स सपोज अगर आपके साथ कुछ हो गया है तो अब उसका क्या हल है। मतलब जरूरी नहीं कि अब आपने उसको गुस्से से हल करना है, आप उसको बड़े सुकून से बड़े प्यार से एक अच्छे तरीके से आप उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। वो जरूरी नहीं कि आपने लड़ना ही है हर बात पे। मैं बहुत ज्यादा उस चीज को मैंने ओवरकम की है, लेकिन अभी भी काफी ज्यादा लैक करता हूँ मैं उस चीज में। मतलब मैं काफी जगहों पे ऐसी बात पे गुस्सा कर देता हूँ जो मुझे बाद में होता है यार ये गुस्से करने वाली बात नहीं थी, बड़ा सुकून से ही मामला हल हो सकता था। तो मेरी मदर को मेरे से अक्सर ये शिकायत रहती है कि ये हाँ, बड़ा जज्बाती है। तो लेकिन अब काफी हद तक जाके मैंने उस चीज को कंट्रोल कर लिया हुआ No, really, उनकी जो teachings, the morals of parents is really important. Because वही हमें जानते हैं, they are the one who gave us birth, तो वह हमें रग रग से वाकिफ। And yeah, that is true. If you have patience, we say in Islam also, if you have patience, it is the key of success for everything. So in life, आपके सर्कल पे पॉजिटिव नहीं, आपको नेगेटिविटी भी बहुत मिलते होंगे। Like more है। people, they try to dominate, बहुत कुछ There are कहते more हैं। people negative. There are more people Yeah, negative over here. Positivity, अगर आप खुद पॉजिटिव है ना तो आपके साथ जो आवाम जुड़ती है ना वो ऐसा ऐसा वो आवाम होती है जो पॉजिटिव एक उसकी वाइब पॉजिटिव मैच करती है। लेकिन आपको स्टार्ट में अगर आप ये सोचते हैं ना कि यार आपको हर बंदा वेलकम ही करे, तो ऐसा नहीं होता। आप मतलब नॉट इन दिस प्रोफेशन, आप किसी प्रोफेशन में चले जाएं। I have been a salesperson, I have been an assistant producer, I have been a content writer, I have been a customer service representative। तो आपको हाँ, अगर 10 लोग हैं तो उन 10 में से 10 आपको वेलकम नहीं करेंगे। मतलब exactly. ये एक ये आप कह लें कि ये एक बिटर ट्रूथ है कि आपको हो सकता है वो 10 के 10 ही वेलकम ना करें, हो सकता है आपको वो 10 के 10 वेलकम कर लें। अगर वो 10 के 10 वेलकम कर रहे हैं तो उसमें ज्यादा चांस ये होता है कि या आपकी लक अच्छी है या वो 10 के 10 ही आपकी वाइब के साथ मैच कर रहे हैं। लेकिन अगर आप वो 10 के 10 आपको वेलकम नहीं कर रहे तो जरूरी नहीं कि अब आपने उसे लड़ना ही है कि अब आप क्यों नहीं वेलकम कर रहे, क्या वजह है। इट्स ओके अगर आपको वेलकम नहीं कर रहे तो मतलब मेरे लिए कि वो आपको उस चीज को लेट इट गो कर देना चाहिए। मतलब काफी मैंने आपको बताया ना पहले कि मैं काफी चीजों के ऊपर पहले बहुत ज्यादा आप कह लें कि एग्रेसिव था, मैं बहुत ज्यादा रिएक्ट करता था। लेकिन अब जाके काफी चीजों के ऊपर मैंने कर लिया कि ठीक है यार, अगर लेट्स से वक्त एक के साथ सब बंदा है समझ जिसको, जाते हैं। हाँ मतलब आपको एक बंदा है जिसको आपका काम समझ नहीं आ रहा, उसका काम आपको अच्छा नहीं लग रहा, तो ब्रो दैट्स ओके, कोई मसला नहीं है। उसको नहीं अच्छा लग रहा तो कोई नहीं, उसके साथ कोई ना कोई तो होगा जिसको आपका काम अच्छा लगता है। मतलब Yeah, मैं you're right. मदर बेसिकली मदर से आप रिलेशन पूछ रहे थे। माय मदर इज द मतलब मैंने क्योंकि मेरे फैमिली में सबकी माँ है माशाल्लाह, तो वो मैंने अपनी माँ को स्पेशली ये देखा है कि मैं मेंबर था, देयर इज अ क्लब इन पाकिस्तान लाहौर, MTFC मॉडल टाउन फुटबॉल क्लब, तो मैं उसका मेंबर था। तो मैं एकेडमी जाता था, एकेडमी से आके
मतलब अगर मैं 7 o'clock वापस आया हूँ तो मैं 7:30 पे मुझे मदर स्पेशली कहते थे कि बेटे तुम्हारा खेलने का टाइम हो गया है। तो मुझे मदर लेके जाती थी खिलाने, फुटबॉल खिलाने जाती, लेके जाती थी कि मैं फुटबॉल खेलता था, और मदर बाहर बैठ के या तो पेपर से करी थी या तस्वीर पढ़ी होती थी। तो वो मैंने अभी तक ऐसी माँ नहीं देखी मैंने आज तक। मतलब मेरी मदर ने मुझे जितना सपोर्ट किया है ना, वो मैंने अभी तक अपने जितने दोस्तों में ना इतनी इस तरह की माँ नहीं देखी। मतलब मेरी मदर जो है वो हाउस वाइफ भी है, मेरी मदर टीचर भी है, मेरी मदर एक वर्किंग वुमन है। और अम्मा स्कूल को, अपने प्रोफेशन को, अपने घर को किस तरह से लेके चलती रही हैं, वो मेरा ख्याल है कि बहुत कम माएँ मैंने देखी हैं जो इतना ज्यादा इस अपने बच्चे को सपोर्ट करती हूँ। मतलब मेरी हमने बहुत बहुत ज्यादा हार्ड टाइम्स फेस किए हैं। तो मुझे लगता है कि वो अगर मैं इस जगह पे बैठा हूँ, या अगर आपने मुझे उस दिन कॉल किया, तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरी मदर थी बैक पे, कि जिन्होंने मुझे पुश किया, जिन्होंने कहा ठीक है आपने करना है, ये आपका शौक है आप करो। मतलब मोस्टली इधर माँ होती है वो कहती नहीं नहीं ये क्या प्रोफेशन है, ये कैसे Yeah. होगा। मेरे कितने रिलेटिव्स हैं तो वो Don't उनको joke, उनको you अब तक know, ये kind of. उन हाँ उनको अब तक ये बात समझ ही नहीं आती कि फोटोग्राफी इज अ प्रॉपर प्रोफेशन। आपको आप उससे अर्न करते हैं। तो वो मुझे स्टार्टिंग में सुनने को मिलता था, अच्छा बेटे वो आप फोटोग्राफी करते हैं तो वैसे अर्निंग के लिए आप क्या करते हैं। तो मैं बड़ा हैरान होता था कि यार क्या मतलब अर्निंग के लिए क्या करते हैं, मैं फोटोग्राफी से अर्न करता हूँ मतलब क्या। आप क्या मतलब मैं मतलब मेरी कोई दुकान होगी, या मैं कोई गवाला हूंगा, मैं कोई कुछ बेचता हूंगा, या मैं डॉक्टर इंजीनियर हूंगा तो ही मैं मतलब कुछ अर्न करूंगा। मतलब मैं फोटोग्राफी से अर्न नहीं कर सकता। तो ये एक्चुअली बहुत लक है मेरी, और स्पेशली मेरी मदर की बहुत दुआएं हैं कि मेरा मेरा जो पैशन था वही मेरा प्रोफेशन है, और मैं उसी प्रोफेशन से अर्न कर रहा हूँ। अपने अम्मी अब्बू से इतना क्या ऐसा सीखने को मिला जो अभी भी आप बहुत फक्र करते हो और बहुत गर्व की बात है? मुझे एक्चुअली मदर से सीखने को मिला है, बिकॉज माई फादर लेफ्ट मी व्हेन आई वाज 6 years old. ओह, माई फादर लिव सॉरी टू नो सेपरेट। दैट। फादर जो है बेसिकली ही लिव्स इन कराची। तो आई रिसेंटली विजिटेड कराची 2 months before. तो आई सॉ माई फादर लाइक आफ्टर 20 years. और मेरी बड़ा एक आम सा शख्स था जो मेरे साथ बैठा हुआ है और बात कर रहा है, वो फील नहीं थी। तो मुझे क्योंकि मदर ने ही बचपन से मेरा ब्रॉडअप, मुझे पाला है और मतलब मुझे लुक आफ्टर किया है। तो मुझे बड़ा प्राउड होता है कि मेरी फैमिली में आई बिन आई बिन स्टडीड इन वन ऑफ द मोस्ट टॉप स्कूल्स फ्रॉम लाहौर। आई बिन मैंने मेरी ग्रेजुएशन जो है वो uh, जो लाहौर की जो टॉप यूनिवर्सिटीज आती हैं वहां से की है। और देयर इज नो वन फ्रॉम माई फैमिली के जिनका ये एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा हो। मतलब मुझे मदर ने हर तरह से सपोर्ट किया है, और मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ उस चीज़ को कि यार मेरी मेरी माँ ने मुझे हर तरह से, मतलब मुझे कभी ये फील नहीं हुआ कि मेरे फादर नहीं है। मुझे 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 याद है कि मुझे मतलब कोई मतलब आधी आवाज के ऊपर ना, मुझे कोई चीज जो है ना, अगर मैंने मेरे मुंह से कोई चीज निकली है ना, तो वो आधी जुबान पर वो चीज मेरी पूरी हो जाएगी। कोई भी ऐसी चीज जो मदर को लगता था कि हाँ जी वो कर सकती हैं, तो वो उसी वक्त वो मतलब वो विद इन अ वीक वो काम हो जाता था मेरा। तो मतलब मदर ने बहुत सपोर्ट किया, और मैं बहुत आई फील सो प्राउड कि एक्चुअली आई फील सो ब्लेस्ड बीइंग अ चाइल्ड ऑफ दैट मदर। मतलब मैं मदर जो है बेसिकली मेरे साथ अक्सर नाराज रहती हैं मेरी, कोई न किसी बात की वजह से। और मुझे मैं मतलब उस वो चीज उस तरह से कन्वे करनी पड़ता है क्योंकि मेरे शायद क्योंकि नेचर बहुत फर्क है, तो वो चेंज करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो मतलब कोई ना कोई बात होती है कि ये नहीं तुमने किया, ये क्यों कर रहे हो, ये ऐसे नहीं करना था। तो लेकिन मैं मेरी कोशिश होती है कि मेरी माँ को कोई परेशानी ना हो मेरी तरफ से। Yeah, you know, you made me really emotional now. मेरा previous episode में भी I was very emotional because when it comes to the relationship with family, especially mother and father, it's really sensitive topic.
As I mentioned, Dawood, we have something surprise for you, and you will be really excited to hear about that. There are so many people who wants to speak to you, who want to say something. That's the most important about this segment, connect yourself. I'll ask my team to play it for you, and then you can have look on it. Sure. अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद दाऊद की वालदा मैमूना बात कर रही हूँ। माजरत खा, लाइन काफी देर से नहीं आ रही थी तो मैं आपको जवाब नहीं दे पाई। आपने मेरे बेटे के बारे में पूछा। मेरा असल में ये फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा कि मैं अपने बच्चे के बारे में इस तरह से बात करूं। बहरहाल कोशिश करते हैं मुझे कुछ बातें कर सकूं इसके बारे में। एक ही बेटा मेरा अल्हम्दुलिल्लाह, और ये कि बहुत अच्छा बेटा है ये मेरा। अगर बाकी आसपास की फैमिलीज में बच्चों को देखूं तो ये काफी अच्छा बच्चा है, लेकिन अच्छाई की सजा है बुराई में होती है, तो उसके लिए दुआ को रहती हूँ। बातों के लिए जो इसके अंदर मुझे बातें जो ठीक नहीं लगती उसके लिए दुआ को रहती हूँ, और ये कि अल्लाह पाक इसको कामयाबियां दे, तरक्कियां दे, और मेरी ये ख्वाहिश है कि अल्लाह पाक इसको बेहतरीन बाअमल मुसलमान बनाए और दुनिया में इसको हर कदम पे कामयाबियों से नवाजे, और हर तरह से इसको लोगों की शर से और लोगों की हसरत से बचाए रखे मेरे बच्चे। अल्लाह हाफिज। एक दो और बातें करना चाहूंगी इसके बारे में। तबीयतन मोहम्मद दाऊद जो है वो बेहद सादा तबीयत का है। अल्लाह का शुक्र है कि इसके अंदर नखरा नहीं है किसी भी तरह की। कोई चीज पका के इसके सामने में रख दूं तो इस बच्चे ने कभी इनकार नहीं कभी किया खाने से। कभी इसने ये नहीं कहा कि मुझे ये नहीं खाना, मुझे ये नहीं खाना, या फरमाइश ये नहीं करता। ये बहुत ज्यादा कभी कभार जब फरमाइश करता है तो मैं बहुत ज्यादा खुश होती हूँ इसकी इस बात से कि इसने इज़हार किया कि यार मुझे ये चीज चाहिए। कपड़ों के बारे में कभी कभी मुझे ये कह देते हैं। पहले कभी कपड़ों के बारे में भी कभी नहीं कहता था, जो चीज उसको ला के दे दी पहन ली इसने। अब माशाल्लाह से समझदार हो गया, शायद इस वजह से इज़हार करते हैं। बट ये कभी भी मुझे अगर अपनी ख्वाहिश का जब इज़हार करते हैं तो मुझे पे बहुत ज्यादा खुशी होती है। डिमांडिंग नहीं है, लेकिन लोगों की केयर बहुत ज्यादा करता है। आउट ऑफ द वे जाके भी लोगों की फिक्र करता है। ये इसकी मुझे बहुत अच्छी आदत लगती है। मेरा ये दिल चाहता है कि ये सबके साथ तमाम रिश्तों को अच्छी तरह से निभाए और सबके साथ इसी तरह से एहसास करता रहे। ये मुझे एकदम से ये बात याद आई, मैंने इसका भी आपके सामने हम दोनों ने एक साथ मिलकर स्टार्ट किया। और मेमोरीज की जहाँ तक बात की जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी ऐसी इंटरेस्टिंग मेमोरी ऐसी है जो मेरे बगैर है इसकी स्टार्टिंग डेज में स्पेशली। और हम दोनों का वक्त ऐसा गुजरा है कि हम इसको याद करने बैठे तो कई दिन लग जाए, लेकिन हमारी मेमोरीज खत्म ना हो। तो आई गेस कि ये दाऊद ही आपको बताए कि हमारे साथ क्या क्या हुआ है, हमने कैसे फेस किया है। स्पेशली वही बात है स्टार्टिंग के आपको पता है कैसे होते हैं, बहुत सारे लोग आए हमारे दरमियान और काफी इंटरेस्टिंग चीजें हमें सिखा के गए। सो मेरा भाई है ये, और विश हिम बेस्ट ऑफ लक। ख्याल रखिए और अल्लाह पाक इसे और सक्सेस बहुत ज्यादा। Hello, this is Shahnur Dhuleja, and I am from Lahore. I know that because of a friend, and we became friends on a shoot. Well, not on a shoot, we actually met through a friend, and then I got to know that he took his shoots and all. तो हमारी एक गपशप के दौरान और एक छोटा सा शूट के दौरान ही मुलाकात हुई। हमारा एक काम बड़ा लेजेंडरी हमारा एक वाकया था, which is एक कह सकते हैं कि हमारी एक लाइफ में एक होता है ना स्टेप होता है जिसमें आप कहते हो यार ये देख के बंदा आगे चलता है यार क्या कमाल होगा। खैर
इसको ज़्यादा प्रोलॉन्ग नहीं करूँगा। I would like to say कि दाऊद इज एन अमेजिंग पर्सन और पाकिस्तान का अगला धमाकेदार और कमाल किस्म का जो है हमारा आने वाला एक फोटोग्राफर है विद एन अमेजिंग सेंस ऑफ लाइट और उसके साथ साथ उसके अलावा बहुत अच्छा और हाजिर तबाल इंसान है और सार्केज़म तो भाई पे खत्म, मतलब मैं कहता हूँ कोई का लेवल है, बाकी यारों का यार है, प्यार बहुत करता है, लेकिन बस यही है कि खुश रहे आबाद रहे। यस माय वन विश फॉर दाऊद वुड बी कि मेरी जान थोड़ा ठंडा लाकर गुस्सा कम रखाकर, मतलब अगर टाइम्स और वैसे शहजादा बंदा है दाऊद के साथ। आई हैव मेड लाइक a lot of memories. One of those memories would definitely be the one जिसकी शूट में पहले बात कर रहा था, जिसमें दाऊद and we all planned a shoot which was for a brand named Wasl और किस तरह से it was a total disaster at every each point, लेकिन मैं दाऊद पे ही वो था बार बार कि यार कमाल बनता था उनके इस सारा कुछ के दौरान। he played a very क्या कहेंगे अच्छा रोल कि he was motivating everyone even though वो भी इतना ही ख्वार हो रहा था जितना हम सारे हो रहे थे, लेकिन बहुत शरारत बंदा दाऊद के साथ। इसके अलावा बहुत वाक़यात है, इसके अलावा एयरपोर्ट वाला वाक़या भी है, वो दाऊद समझ गया होगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। बाकी मैं ये बोलूँगा खुश रहे आबाद रहे, भाई है जान का टुकड़ा है, गुस्सा बस थोड़ा कम रखा करें। हेलो एवरीवन, माय नेम इज दाऊद चौधरी एंड आई एम द फ्रेंड ऑफ दाऊद मलिक। हम दोनों का नाम मिलता जुलता है और हम भी और इंटरेस्ट और अभी हम लोग बचपन से दोस्त हैं और पूरी वर्ड यूज करते हैं चट्टी बटी, तो बिल्कुल हम पे सूट भी करता है कि हम लोग चट्टी बटी। और ये है कि दाऊद के लिए मेरी बहुत सारी दुआएं जो माशाल्लाह बहुत सारा प्रोग्रेस कर रहा है और माशाल्लाह डे बाय डे अल्लाह उसको बहुत इज्जत दे रहा है और मेरी यही दुआ है कि अल्लाह उसको इसी तरीके से इज्जत और कामयाबियां देता रहे, तरक्कियां देता रहे। दाऊद बेसिकली फैशन फोटोग्राफर है और मैं भी फोटोग्राफर हूँ, मैं स्पेशलाइज हूँ वेडिंग्स के। तो हम दोनों ने इंटरेस्ट भी हमारे सेम है, शौक भी सेम है, जैसे कि मैं बता चुका हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों की एक अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी, मतलब एक दूसरे के सीक्रेट्स है हम लोग जो जानते हैं। और मेमोरीज की भाई रही बात, तो मेमोरीज तो हम लोग की बहुत ज्यादा है, हम लोग चट्टी बटी से एंजॉय करते हैं। तो आप कह सकते हैं कि हम लोगों ने मैक्सिमम टाइम जो है वो एक दूसरे के साथ स्पेंड किया हुआ है। हमें पता है कि किस टाइम पे किस तरह हम लोग आपस में जो है मतलब दोनों भाई बैठ के जब गपशप करते हैं और जब हमारी फैमिली आपस में ट्रैक करती है तो किस तरीके से हम लोग को अपना बैठना है सारी चीजें। और जैसे कि मेमोरीज की बात हो रही थी, मेमोरीज बहुत ज्यादा है। हम लोगों ने पढ़ा भी इकट्ठे बहुत ज्यादा मेमोरीज है, जिनमें से एक तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है तो किसी दफे क्लू के तौर पर मैं अगर वर्ड यूज करूँ तो दाऊद समझ जाएगा कि वो क्या है। दैट इज जब वर्डिंग है, इसलिए हम दोनों बड़े शौक से खाना जाते थे और वहाँ पे उससे रिलेटेड खाना जाते थे और वहाँ पे उससे रिलेटेड हमारी बड़ी मेमोरीज है। उसके अलावा हमारी बहुत सी यादें हैं, जिन चीज़ों को भी याद करें, जिन मेमोरीज को याद करें, इट ऑलवेज गिव अ स्माइल ऑन फेसेस। इस तरीके से मेरी दिल से दुआ है अल्लाह दाऊद को हमेशा इसी तरह कामयाबियां और तरक्कियां देता रहे। यू आर डूइंग वेरी ग्रेट दाऊद, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू माय बॉय। स्टे ब्लेस्ड, कीप स्माइलिंग एंड कीप योर वर्क अप। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, गॉड ब्लेस। So, Mr. Dawood, how is the surprise? There are so many people wants to say so many things to you. How was that thing? It was pretty good. It was pretty good listening from people who know you from your childhood, people who actually know you, who actually have experienced those backlashes, those hard times with you. तो अच्छा लगता है लोगों से सुनना कि तो आपको आपने आप इंटरेस्ट था। उनको कुछ कहना चाहते हो, your mom, your three of the friends, anything you want to say to them? कुछ कहना चाहते हैं आप उन्हें? ये जितने लोग भी थे, हर एक की अपनी एक फील्ड है और मेरी ये तीनों जो हैं इनके साथ मेरी बहुत ज़्यादा यादें वाबस्ते हैं। स्पेशली जब आप
अरसलान की और दाऊद की बात करते हैं, तो अरसलान के साथ तो खैर पूरा कैरियर स्टार्ट किया था मैंने। और दाऊद मेरा तब का दोस्त है जब हम लोग पता नहीं कितना कितना पैदल चले हैं। फिर हमने साइकिल इकट्ठी ली, फिर हमने बाइक इकट्ठी ली, फिर गाड़ी आ गई। गाड़ी मेरे पास बचपन से थी, फिर दाऊद ने गाड़ी ले ली। तो हमने वो हार्ड टाइम्स बहुत फेस किए हैं। मतलब हम लोगों ने पता नहीं कितना कितना, हमारे पास पैसे नहीं होते थे खाने को, लेकिन हमने शुगर भी करना है, हम दोस्तों के साथ भी फिरना है। और तो हमारी बहुत ज्यादा यादें रही। असलान के साथ, असलान बेसिकली मेरा, हम लोग एक ऑनलाइन मैगजीन में जॉब कर रहे थे, वहाँ मेरे असलान से मुलाकात हुई। तो असलान वाज अ वीडियो एडिटर वर देयर। तो Even you told that Arslan से मिलना, contact में होना बहुत difficult होगा, but see, he replied, and I was so happy when he replied. Really, it was so happy. हाँ, असलान को आपने कॉल करनी तो आपको, मतलब लेट्स सपोज आपका कोई आपकी कोई लड़ाई हो गई है और आपको किसी मुश्किल वक्त में असलान की जरूरत है ना, तो वो मोस्टली असलान साहब जो है ना वो अवेलेबल नहीं होते। तो आप सोच के ये अरसान को कॉल करते हैं कि भाईजान इसने कॉल नहीं उठानी, ये भाई मसरूफ है, ये नॉर्मली अरसान मिलता नहीं है, स्केड्यूल डिफरेंट होता है अरसान का। मतलब अब मैं अरसान को कॉल कर रहा हूँ, अरसान कभी इधर है या कभी नारोवाल है, क्योंकि अरसान नारोवाल से बिलोंग करता है। तो अरसान के स्केड्यूल का आपको नहीं पता होता कि अरसान, क्योंकि उसने ना पूरे दिन में ना कुछ 10 चीजें लाइन अप की होती हैं, उसने 10 की 10 करनी है। वो कभी इधर है, कभी उधर है, 5 मिनट बाद उधर है, 5 मिनट बाद इधर है। तो वो आपको ना बड़ा मुश्किल होता है कि आप अरसान के साथ ना कोप अप कर पाए। But वही I'm really शहनूज के इंसान। happy. But I'm हाँ really happy that they did हाँ something for you great, and that is what our whole segment was about: connecting people and to know about them. Especially, I was very blessed to know about your mother. She's the way she's spoken. Really, it was so amazing to hear on our platform. This is what our platform is all about: connecting people all around. So we'll take a short break from segment number 2. Don't move anywhere. We are in conversation with Daud Malik from Pakistan, who is a photographer, and we were knowing his circle about. Welcome back. After a short break, we are moving our segment number 3, which is a rapid fire. In this rapid fire, Dawood, I'll ask you some questions. You have to answer very fast. You cannot take your time. And if you take your time, you will lose this hamper. The first question is, what is the one professional goal you have for yourself? एक गोल जो आपने सोचा हो अभी अपने लिए. डूइंग अ कवर शूट फॉर वोग इटालिया। ओके. आपका सबसे बड़ा लंबा शूट कहाँ पे हुआ था? तो लंबा शूट अंदरून शहर लाहौर। ओके. आपका सबसे फेवरेट डिजाइनर या मॉडल कौन है? फेवरेट मॉडल जो थी वो फौत हुई है पिछले साल, जारा आबिद, फीमेल मॉडल फ्रॉम पाकिस्तान। टॉकिंग अबाउट स्कूल के टाइम पे कौन सा गेम आपको ज्यादा पसंद था? किसके टाइम पे? स्कूल के टाइम पे. स्कूल के टाइम पे या. आई वाज फुटबॉलर। ओके. आई वाज फुटबॉलर। which स्मार्ट ऐप, कौन सा ऐप आप ज्यादा यूज करते हैं? इंस्टाग्राम। ओके. कोई एक कहावत, कोई एक कोट जो आपको याद हो, जो आपकी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है, एक कहावत या एक लाइन या एक बात है. आपकी जिंदगी ना आपको रोज कुछ ना कुछ ऐसा चैलेंज देती है जो आपको कुछ ना कुछ, जिससे आपको सीखने को मिलता है। तो द मोमेंट यू थिंक कि यू हैव लर्न एवरीथिंग, तो वो लम्हा जो होता है ना, वो आप समझे कि आपकी जिंदगी का आखिरी लम्हा है, क्योंकि इट इज नेवर स्टॉप। और वो आपका जो लर्निंग प्रोसेस है ना, वो कभी भी रुकता नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि आपने सब कुछ सीख लिया, तो उसका मतलब आपने कुछ नहीं सीखा। परफेक्ट. व्हाट इज योर ड्रीम वेकेशन? आपको वेकेशन कहाँ जाना पसंद है? ड्रीम वेकेशन कौन सी जगह? ड्रीम वेकेशन टर्की, इस्तांबुल। ओके. आपको एक शख्स से मिलना हो तो आप किससे मिलना चाहेंगे, और उनको कुछ कहना हो तो आप क्या कहेंगे उनसे? आपको एक शख्स से मिलना हो तो क्या कहना चाहेंगे? वो कोई भी हो सकता है, मतलब मदर भी हो सकती है। anyone in the world whom you want to meet.
वो अगर मदर हो तो मदर को मैं ये कहना चाहूंगा कि आई एम सॉरी कि मैं बहुत ज़्यादा तंग करता हूँ। और मैं अक्सर औकात ये सोचता हूँ कि क्योंकि हमारे इस साल ना काफ़ी जो दोस्त हैं उनके फैमिलीज में डेथ्स हो रही हैं। तो मैं कभी ये सोचता हूँ कि मैं मतलब अपनी मदर के बगैर क्या करूँगा, कोई अगर ऐसा कोई हादसा होता है तो मैं क्या करूँगा। मतलब मैं आई एम द ओनली वन, और मतलब मेरी मदर मुझे लुक आफ्टर करती हैं। तो आई डोंट वांट टू एक्सपीरियंस दैट थिंग एक्चुअली, कि जिसमें मुझे ये हो कि मैं अब अकेला हूँ, मतलब मेरे पास अब मेरे बैक नहीं है। तो ये बहुत ज़्यादा मैं फील करता हूँ इस चीज़ को। स्पेशली मेरा एक दोस्त था, we had a friendship of 18 years. तो our friendship ended on his funeral, मतलब he died due to cancer। और वो एक मेरा वो वाहिद दोस्त था कि मैं कहीं भी लड़ पड़ता था ना, तो मैंने सिर्फ उसको ही कॉल करनी होती थी कि यार ये लड़ाई हो गई है, वो जिस मर्जी से लड़ाई हो जाए। मतलब नो मैटर, मैंने किसी एमएनए को, एमपीए को, किसी को भी, किसी के साथ भी लड़ पड़ा हूँ मैं, तो वो मेरी बैक पे होता था कि यार तू परेशान ना हो भाई, इधर ही है। तो द डे ही डाइड, कि वो मेरे लिए बड़ा एक हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट था कि मैंने उसको बड़ा मुश्किल से उस चीज को ओवरकम किया था। And I pray that you will never be apart from your mother. Inshallah, may you stay together and may you have a long lifespan. Okay, what you are very grateful for? आप किस चीज से ज्यादा शुक्रगुजार हो? I'm grateful for everything. I'm grateful for every challenge Allah has given to me. I'm grateful for every success Allah has given to me, for in negative पर्पस और नेगेटिव और या पॉजिटिव साइड से जो भी चीज अल्लाह की तरफ से आई है वो उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। ओके, आप जब छोटे थे तो आपने कौन सा ऐसा शरारती किया जो अभी भी आप याद करते तो हंसते हो? शरारती अच्छा, मैं ज्यादा शरारती नहीं था बचपन में, लेकिन अक्सर औकात मेरे जो दोस्त थे वो मेरा पूरा ग्रुप वो शदीद शरारती होता था। तो हमने बचपन में जो है वो क्लासरूम्स के अंदर जो है वो कोई पटाखा भी चलाया हुआ है, हमने लड़कियों को बहुत तंग किया हुआ है बचपन में। तो वो अक्सर औकात मैं हंसता हूँ कि यार हम लोगों ने क्या हरकतें की हुई। तो मेरे कभी दोस्त वगैरह बैठते तो हम लोग बहुत इस चीज को एंजॉय करते हैं कि यार ये क्या क्या कुछ कर लिया हमने। मतलब मेरी अब की जो जनरेशन है उन्होंने एक्चुअली वो टाइम फेस नहीं किया, या उन्होंने एक्चुअली वो स्टूडेंट लाइफ एंजॉय नहीं की जो हम लोग कर चुके हैं। मतलब वो कर नहीं सकते। उसकी वजह ये है कि आपकी जनरेशन जो है वो उनकी जिंदगी मोबाइल भी शुरू की, मोबाइल भी खत्म हुई थी। अगर आपके कमरे में 10 लोग बैठे हुए, 10 लोग आपस में बात नहीं करेंगे, वो 10 लोग आपस में लगे हुए मोबाइल पे लगे हुए। तो लेकिन हमारे हमारे टाइम के ऊपर ना इंटरेक्शन बहुत ज्यादा था, मोबाइल्स नहीं थे उस तरह से। जिसके पास मोबाइल होता था वो लगता था कि बहुत कोई अमीर इंसान है। तो अब तो बहुत आम है। तो मुझे लगता है कि ये काफी सारी चीजें हैं जो चेंज हो चुकी हैं। Very good to know. Now the rapid fire is over. I'm really impressed. Okay, moving to our last segment. That is the best thing about our show. Is what's your khwahish, your wish, which you want to get it fulfilled? मैं चाहता हूँ कि मदर को मैं अपनी हज करा सकूं, और उनकी जिंदगी में वो उस लेवल पे पहुंच जाऊं जिस लेवल पे मुझे देखना चाहती हूँ। क्योंकि मैं बचपन से अपने स्कूल का पोजीशन होल्डर रहा हूँ, स्पीकर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला हुआ मुझे। फिर उसके अलावा मैं एथलीट्स में बहुत अच्छा था, आई वाज अ गुड एथलेटिक इन माय स्कूल टाइम्स। और मतलब मेरी मदर ने मुझे बचपन से ही वो सर्टिफिकेट्स और पोजीशंस लेते हुए देखा हुआ है। फिर आई वाज अ ब्रॉन्ज मेडलिस्ट इन माय स्कूल। तो वो बचपन से ना एक मदर को है कि ये ना, मतलब ये हर जगह के ऊपर ना कहना है कि कुछ ना कुछ होता है कि एवरेज बच्चों में नहीं आता। तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपने प्रोफेशन के अंदर भी उस लेवल पे पहुंचूं कि मदर को हो कि हाँ ये मेरा बच्चा जो है ना ये एक नॉर्मल, एक एवरेज लोगों में नहीं शुमार होता, ये इसने अपना जो गोल्स थे उनको अचीव कर लिए। Inshallah, we pray for you all the best. आपके सारे थैंक यू सो मच। ख्वाहिशें इंशाल्लाह पूरा हो. Thank you so much, Dawood, to accept our invitation. And really, such Pura, it was amazing to have you on my platform. And not only me, my team, they are so happy because the way you spoke,
your stories, your connecting with your parents, especially with your mother. It's an amazing. Thank you so much to be there on our Thank you show so much. Thank you and so keep much. in touch with us. Till then, we are signing out and we will be back after a short break with another new episode, also with next time. Thank you so much to be a part of Thank our you show. so As you have seen, how Daud has really inspired us, especially the connecting people, the way his mom has spoken about him. It really, really touched not only me and my team also. Remember, parents are a really important part of our life. When they are there, we should always value them, and we are blessed to have them. There are so many people, those who don't have them, but still they remember them. This is what life all about is. Art and creativity is one of the skill which hardly people have, and when you have that skill, make sure you use it. As in our important concept today, we explained that the mother was supporting the child to fulfill his ambition and his passion. So please guide your children, please promote them, please support them in what all they want to do, because their wish and their wish is very important. Then only they can fly like a star, like a superstar, and like butterflies. As I always say in my all the blog, every time in all the episode, please do wear mask, maintain social distancing, and also use sanitize whenever required. Follow all the protocols which is set by the government and the society, because only we are responsible for all what is happening. So this is the way we can control the COVID-19. Till then, it's me signing out from this episode. We will be back with our next episode with one more great personality who will inspire us like how Mr. Dawood has inspired. Till then, it's me signing out. Jazakallah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.